ओके सर। लेट्स सी। ऑडियंस ऑडियंस भी क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखी है क्या? नहीं नहीं, वैसे ऑडियंस का है, लेकिन मतलब मेनली हम ओपन नहीं रखे हैं अभी। अभी मतलब बहुत लेस ऑडियंस आएगी वैसे तो, क्योंकि ये अपलोड होगी वीडियो बाद में उस पे यूट्यूब पे। ओके। So I thought there are 10 questions. Actually, let me see. यस सर। 10 ही है, 10 या 11 के अराउंड है। Uh, आई थिंक वी कैन स्टार्ट अभी। अगर 5 मिनट आपको टाइम चाहिए तो आप बोल सकते हो। 1 second. तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सो जस्ट अ एक्चुअली सेकंड मैं सर। थोड़ा नेट का ट्रबल हुआ है शायद आपकी साइड से। मेरे साइड से। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो good afternoon, everyone, and welcome to this session. First of all, welcome to Pushkar sir, and thank you for joining us, everyone. So, yeah, we have Pushkar sir with us, who is a founder of a co-founder and CEO of PrepLearn, and he is an entrepreneur currently. So, I would like to ask Pushkar sir to introduce himself. Over to you, sir. Much for inviting me here to introduce my Prep and Lunch. It's my honor to being here and to present some things in front of you all guys. So I'm being honored to here. Thank you. Thank you so much. So we can break this session in two parts. Firstly, we will be talking about this edtech companies and about this industry, and then we will be talking about Preplearn, which is a company in which Pushkar sir work, and it is growing currently. So. Meanwhile, if anyone have a doubt, then they can leave it in the chat box. We will take the questions when we have time at the end of this session. So first thing that I want to ask from you, sir, that what are the difficulties that when you made up mind for being an entrepreneur, and can you share some of your strategies that pushed you up, if you don't mind for that, like a No, no, no. strategy when you started all these things. So the journey start when I was studying in class ninth or class eighth. Uh, at that time, one of our friend that is Sonu Kumar Singh. He is currently in Indian Air Force, but he is supporting our startups and the propellant from the back door. So we both of us actually started something that actually the problems we exactly faced in our preparation journey. I think this is of 5 or 6 year ago. मतलब बहुत 5 या 6 साल पहले की बात है। Mhm. तो उस टाइम से actually I belong from Saurangabad, Bihar. This is a small district in Bihar state. So you all know, guys, what is the current situation and what is the current situation of education, and there is some mindset of people of Bihar, and there is a lack of quality education. Yes, sir. क्वालिटी हमें मिल नहीं पा रही। अ, और हमने जो था उस समय पे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए हमारा
एक टारगेट हमने रखा था कि we both of us will be prepared for the IIT JEE, but due to lack of resources and the good quality contents and the teachers, हमें वो नहीं मिल पाया. So we search around the internet. We also go through the YouTubes, but at times there was not enough good contents in YouTube. तो Mm-hmm. हमने वहां से स्टार्ट करा कि अगर हमें जो प्रॉब्लम फेस आती है, हम जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर ये बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वी बिलोंग्स फ्रॉम द टियर 3 सिटीज, Yes, क्योंकि sir. ये कोई मेट्रो सिटीज है नहीं, और आप बिहार के कैपिटल्स में भी नहीं रहते हो, पटना जिसकी कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब मॉडरेट कंडीशंस है, वी कैन सर्वाइव देयर, Mm-hmm. और एजुकेशन की भी क्वालिटी ठीक है. उस टाइम पे फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए. तो उस समय इस सेक्टर्स में काफी कुछ लोग थे, ये सर आज का नहीं है, बहुत पहले का है, जो अभी जो हमने एक नया नाम दिया है ई लर्निंग या एडटेक इंडस्ट्री. तो Mm-hmm. इसका जो फाउंडेशन था, इफ यू टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ दिस सेक्टर, तो मेरे हिसाब से ये इसका फाउंडेशन आज के 10 साल पहले हो चुका था. मतलब आप काफी कंपनीज के बारे में या फिर उन स्टार्टअप्स के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो ऐसी थी जो मार्केट्स में काम करती थी, बट उनके पास एक्सपोजर्स नहीं थे. सबसे Mm-hmm. बड़ी बात हुई. तो हमने सबसे पहले इसमें सर, इसमें मतलब जो लैक ऑफ कंटेंट्स जो है हमारे पास, क्वालिटी कंटेंट्स, उसके हमने काफी अच्छे अच्छे जगह से हमने यूज करे, जैसे द हॉट मतलब हब स्पॉट ऑफ एजुकेशन, यू नो गाइज, द कोटा, दिल्ली, विशाखापट्टनम, हैदराबाद. तो हमने वहां से कुछ रिसोर्सेज हमने एक्वायर करे, उन पे रिसर्च, मतलब हमें पहले तो भाई बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग अ एस्पिरेंट्स, यू हैव टू डाइजेस्ट all those material, all those study steps, whether it is good or not for you. When you at a Mm-hmm. good level, I mean आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि चलो भाई ये मटेरियल्स और ये स्टडी स्टफ हमारे काम आई, और हमने इनके थ्रू पढ़ा, जिसके चलते हमने ये एग्जाम क्रैक किया या फिर हमारी सिलेक्शन हुई. तो वो चीज की हमारे स्टेट्स में काफी कमी थी, और अभी भी है, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल कल्चर चल रहे हैं, पहले के जो कल्चर चले आ रहे हैं वही ट्रेडिशनल कल्चर सभी भी फॉलो हो रहे हैं. Yes, sir. कुछ अपडेट्स हुए हैं इधर भी, बट उतना ज्यादा नहीं. मैं बात करूंगा 50 to 60% अपडेट्स हुए हैं. तो 1 second, एक्चुअली there is a heavy rainfall in my area. Sorry guys. Now it is good. So हमने वहीं से देखा कि ये कंडीशंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचर्स के इशू आ रहे हैं, रिसोर्सेज के इशू. तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या फिर हम कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो इन चीजों को हमने ध्यान में रखा उस टाइम के लिए. मतलब से एक एक बात किया जाए ना, मतलब कैजुअली हमने उस चीज को सोचा, मतलब Mm-hmm. पूरी की पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में काम नहीं करने वाले थे, क्योंकि उस टाइम अपन स्टूडेंट थे. तो ये फाउंडेशंस की एक कहानी है अच्छा, तो कि हमारे मतलब साथ जो प्रॉब्लम हुई उसके साथ आप जब हमने टैकल करके और वही देखा. जैसे मतलब आपने स्टार्ट करा इसको 8th क्लास से, and you saw your problem and converted find the solution and made this prevalent so that other can get help from this. Yeah, you're right. तो सर ये मतलब इस जर्नी में आपको जो परसेप्शन और रियलिटी का जो फैक्टर है वो उसके बारे में थोड़ा बताते कि आपने परसेप्शन ये बनाया था लेकिन रियलिटी कुछ और हो गई उसमें जब आपने शुरू करा ये काम, तो और वर्क करते गए फिर आगे आगे पता चलता गया कि परसेप्शन जो बनाए थे वो कैसे रियलिटी अलग है और परसेप्शन आपका अलग था. एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी शानदार है, और आप सबके साथ ये कुछ ना कुछ हुआ होगा ही, क्योंकि अगर आप कोई किसी काम के बारे में सोचते हो कि हमें ये करना चाहिए और हम इसे आसानी से कर लेंगे, आपने सोचा होगा कि वी हैव टू डू दिस वर्क एंड वी कैन सिंपली डू दिस वर्क. कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपन जो है सो उसे आराम से टैकल कर लेंगे.
बट ये जो परसेप्शंस और रियलिटी वाली कहानी है ना, इसमें आसमान जमीन की फर्क है, ठीक है। देर इज ह्यूज differences, or you can say there is a huge gap between perception and the reality in this industry. और when we are going to start our startup prep and learn, हमने जब इसे रजिस्टर किया था, तो हमने सोचा कि मार्केट्स काफी ओपन है हमारे लिए। अगर हम खुद को प्रेजेंट करेंगे, हम एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ जाएंगे, तब Yes, sir. हो सकता है मार्केट में स्टे करे। बट होता है ना कि एट द टाइम पास, जैसे जैसे समय निकलते जाता है, आप जो चीज सोच रहे हो वो कोई सोच के और वो काम कर चुका होता है। तो जैसा मैंने बताया, क्लास 8-9 तक हमने ये चीज सोचा था, उस समय मार्केट में कुछ नहीं था। देयर वर सम यूट्यूब चैनल्स, आई थॉट राव IIT एकेडमी, खान एकेडमी, तो कुछ चैनल्स थे, बट वो इस इंडस्ट्री की ओर उनका प्रॉपर मतलब झुकाव नहीं था। क्योंकि वो बोला जाता है ना कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में काम करके और इस मार्केट्स में आना, ठीक है, दो चीज Mhm. होता है। एक तो मार्केट, और दूसरा आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का काम, पहला काम ये होता है कि आप ह्यूमन नीड्स की समझो। ह्यूमन नीड्स को क्या, अगर आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को आपने समझा, उसके बारे में आपने सॉल्यूशन निकाला, उसे सॉर्ट आउट किया, उसे फिक्स किया। ये पहली चीज हुई। दूसरी, जो अभी करंट है, मतलब जो हमारा करंट सिचुएशन है, इस कंडीशन में एंटरप्रेन्योर का दो अलग डेफिनेशन है। आप मार्केट के लिए आपको वर्क करना होगा, और आपको एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा ग्रोथ मार्केट के सामने लाके दिखाना होगा, ठीक है। Mhm. एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन अलग अलग कैटेगरी में चेंज हो जाते हैं। परसेप्शन हमारी ये थी कि हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, बट रियलिटी इसकी 1% भी नहीं हुई। हमें काफी टाइम लगा मार्केट को समझने में। और मैं अगर बात कहूं कि हमने प्लान में बहुत सारे चेंजेस किए। स्टार्टिंग हमारा प्लान पूरी की पूरी तरीके से ई लर्निंग का था, जो करंट ई लर्निंग कंपनीज कर रही हैं। Mhm. हमारे ऑनलाइन ट्यूटर्स होंगे, आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिलेंगे, आपको आपके सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन होंगे। बट समय के साथ हमारे उस टाइम पे कुछ कंडीशन सही नहीं थी, हमारे पास टीम नहीं थी, और फिर वो एज नहीं था हमारा, या फिर आप बताओ कि वो डिसीजन लेने के लिए हम उस एज में तैयार नहीं थे। तो टाइम पास हो चुका, और मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके। तो आपको पता है कि आपको बड़े प्लेयर्स को डिफीट करने के लिए फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके टीम मेंबर्स भी काफी अच्छे होने चाहिए, और आइडिया भी धांसू होना चाहिए। तो ये Mhm. कंडीशन बहुत हमें परेशान किया। मतलब कि हमने जो स्टार्टिंग से सोचा था, जो प्रिपेरेंस, जो फाउंडेशन थी, जिस मतलब प्रिंसिपल्स पे, कि ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा, इसी पे अपन काम करने वाले हैं प्रिपेरेंस का, उससे टोटली का टोटली डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने आए। और फिर हमने प्लान्स में 110% का पूरा चेंज किया, मार्केट नीड्स को समझा, और फिर हमने उसका लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो अलग है दोनों। मतलब जैसे जैसे रियलिटी पता चलती है वैसे वैसे प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस होते गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मार्केट्स को अपने नजरिए से देखते हैं, आप हम्म। खुद को कस्टमर्स बनाते हैं। और एक होता है ना कि अगर सेम इंसान सवाल भी पूछे और सेम इंसान जवाब भी दे, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती है, ठीक है ना। आप जज नहीं कर सकते हो, मतलब आप एक, होता है ना, एक्यूरेसी लाना दोनों के हम्म। बीच में, कि आप एक स्पीकर भी हो और आप एक क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो। तो एक इंसान दोनों काम नहीं कर सकता। स्टार्टिंग्स में हमारे साथ भी ये हुआ कि हमने सोचा, हमारे टीम मेंबर्स ने सोचा ये पॉसिबिलिटीज है, इफ वी कैन फिक्स दिस हर्डल्स या दिस प्रॉब्लम्स टू द मार्केट, सो वी कैन बूम इन द मार्केट्स विद इन फ्यू मंथ्स, और विद इन 6 मंथ, हमारा यही टारगेट था। बट मार्केट में जैसे वर्क करना स्टार्ट हुआ, तो ग्राउंड रियलिटी काफी अलग है मार्केट। ओके। सो आपको क्या लग रहा है अभी एजुकेशनल सेक्टर ये जो है एडटेक का, तो ये अभी स्टेबल है या फिर और सैचुरेटेड है कि नहीं है अभी? लाइक अच्छा, इसमें अपना हाँ, या यू फ्यूचर कैन कंप्लीट कर योर। सकते हैं प्रॉपरली या फिर अभी भी टाइम लगेगा इसको बिल्ड होने में? मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आपने कुछ वर्ड्स जो हो गए वो आपने नया नया सुना होगा, एडटेक इंडस्ट्री, ई लर्निंग इंडस्ट्री, हम्म। एंटरप्रेन्योर्स,
एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जो सदियों पहले था, ठीक है ना, एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है, उस वर्ड की एक अलग इंपॉर्टेंस है। बट ये वर्ड्स जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है ना, ये मार्केट के नीड्स के चलते ये वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किए गए। और आप बात कर रहे हो सैचुरेशन का, तो आई डाउट अभी मार्केट 5% भी एक्सपेंड नहीं हुई है। अच्छा। मार्केट में बहुत प्लेयर्स को आना बाकी है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप करंट में 3-4 प्लेयर्स के बारे में जानते होगा, और अब तो 2 ही बच गए, द अन अकेडमी एंड द बायजूस, जो हाँ, प्योर ई बायजूस। लर्निंग प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही हैं। क्योंकि हम्म। बायजूस का काम है, बायजूस ने अभी इस रिसेंट मतलब इस करंट ईयर में 8 स्टार्टअप्स को एक्वायर किया, इंक्लूडिंग व्हाइट हेड जूनियर, अपग्रेड, ग्रेड अप एग्जाम प्रिपरेशन ऐप एंड द मेनी मोर। करंट्स में वो बाहर की कंट्रीज में भी वो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। अन अकेडमीज ने भी काफी लोग को एक्वायर किया है, काफी स्टार्टअप्स को, बट अन अकेडमी की थोड़ी अलग प्रिंसिपल्स है, बायजूस की थोड़ी अलग प्रिंसिपल, ये अपनी उनकी स्ट्रेटजी है। ये दो हैं। अभी मैं आपको कुछ नाम से ऐसे बताने वाले हूँ जो मार्केट में आपको पता नहीं कि ये आ चुके हैं, बट वो आ चुके हैं। अमेजन अकेडमी, हम्म। अमेजन, जियो, Reliance. Reliance is currently operating its all these operations with Aditi Awasthi. Aditi Awasthi is the founder and CEO of Imbibe. अच्छा। Imbibe. पिछले पिछले साल आई थॉट रिलायंस एक्वायर full Imbibe group. I mean, there is no parental franchisee or a parental controls. They simply acquire whole the Imbibe. I mean, now the parental organization is Reliance, and Imbibe is just acting like a subsidiary of a Reliance, Imbibe Education. तो अभी और भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी इन आवर कंट्री, दैट इज द इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। यस सर। हाँ, वो भी अब मार्केट में आ चुके हैं, टाटा स्टडी। ठीक है, तो ये आप ये समझो ना कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी फेस, इतने बड़े बिजनेसमैन इस मार्केट की ओर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? अगर ये मार्केट सैचुरेट हुआ हुआ होता तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई हलचल नहीं होती है। अगर आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो होता ना कि आप हलचल नहीं हो सकता, वहां पे कोई वाइब्रेशन, कोई रैंडमनेस जैसी बातचीत नहीं होती है। एक हम्म। वहां पे एक हायरकी बना हुआ रहता, उसी मैनर में सारे काम होते हैं। तो आई थॉट 5% भी अभी मार्केट में काम नहीं हुआ, बाकी के 95% बाकी है। एंड एक जो सबसे बड़ी बात है कि आवर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन इज ई लर्निंग। ओके सर। तो अभी आपने जो बोला कि आपके स्टार्टअप जो 8 से आपने शुरू करा है और अभी तक आप उस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये विथस्टैंड कर पाएगी इतने कंपटीशन में? और मतलब क्या यूनिक है इस स्टार्टअप में जो इसको आगे ले जाएगी? एक्चुअली जब अगर मैं क्लास 8 में होता और आपके सामने भी प्रेजेंट कर रहा होता तो मतलब मेरी बातें कुछ और होती। मतलब मैं जो प्रिपेरेंस के बारे में आपको बताता वो हो सकता था कि जस्ट लाइक वी आर वर्किंग अन अकेडमी और बायजूस, हुँ। हमारे पास कुछ मतलब एक होता है ना कि calculated works थे 3 or 5. We have to deliver good content, good lectures to the students in online format or live classes. We have to provide good quality content, study steps, study materials and the resources. We have to clear their doubts, we have to mentor them, we have to counsel them. तो ये चीजें थी जो और हमारे जो टारगेट्स होते, ठीक है, आवर टारगेट्स अराउंड द ग्लोब में उतना तो एक्सपेंशन नहीं कर सकता, बट पूरे इंडिया के बारे में बात करो और स्पेशली नॉर्थ। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल टीम्स की जरूरत होती है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन काफी बड़े होने चाहिए थे। अगर मैं बात करूं तो 50 और 60 मिलियन हमारी स्टार्टिंग बजट होनी चाहिए थी अगर इस पूरे मार्केट को एक्वायर करनी होती तो। बट हमारा जो करेंट जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। वी हैव चेंज आवर ऑल द प्लान्स एज वी एक्सपेक्टेड, और जैसा हमने पहले सोचा था, क्योंकि हमने मार्केट को जाकर समझा और हमने जो इस मार्केट को जो सबसे बड़ी चीज है ना लूफॉल्स, मार्केट का लूफॉल्स क्या है,
उस पे हमने Mm-hmm. वर्क किया। सारे लोग दे ऑल आर टारगेटिंग द ऑनलाइन students, actually those students who are interested to pursue their education in a online format. Mm-hmm. But we all know that India is a middle class country. Simple सी बात है। I, if you belongs to a middle class family and you want to prepare for IIT, JEE, medicals or any higher secondary preparation exam, so there is only two options. So once you will go one of the good institutes that is located outside your states or outside your locations, and the another one is you will go to your local coaching center। Mm-hmm. ये आपके पास प्रॉब्लम्स आती है। तो हमने सोचा कि भाई जो इनपुट सोर्स है, अगर मैं एक बड़ी क्वांटिटी की बात करूं, क्योंकि हम तो अब इस ई लर्निंग सेक्टर में सरवाइव करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास ना उतने पैसे हैं और ना हमारी उतनी बड़ी टीम है कि हम इस सेक्टर से इनको कम्पिटिट कर पाए। हम इनको 1% भी कंपटीशन नहीं दे सकते, ये हमें पता था पहले से। तो हमने सोचा कि बट हमें इस मार्केट में आना था और हमने काफी सारी तैयारी कर ली थी, तो हमने सोचा कि स्टार्ट कहाँ से की। हमने एक चीज सोचा कि अगर हमें पढ़ने जाना होता, हमने स्टार्टिंग के दिनों को याद किया कि भाई हम अपने लोकल कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने गए थे, हमारे अगल बगल के जो कोचिंग सेंटर थे, जो उन टीचर थे उनके पास। अगर ऐसा करते हैं कि जो इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अपने लोकल कोचिंग सेंटर्स में ही अपने एजुकेशन को परस्यू करते हैं, हमने सोचा कि अगर उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की अगर हम हालत काफी अच्छा कर दे, मतलब कि उनके स्टूडेंट्स अगर जो उन्हें नहीं मिल रहा है, जो उनके पास कमी है, जो जो रिसोर्सेज का उनके पास इंस्टीट्यूशंस उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं और उन्हें थर्ड पार्टी के लिए रिलाई करना पड़ रहा है उन रिसोर्सेज का, अगर वो सारी की सारी चीजें अगर उस इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल हो, तो मतलब if you talk about the examinations, I mean the uh, currently all the examinations are going to be held in a online format or a Mm-hmm. CPT। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट्स के पास मैनेजमेंट नहीं है इनकी, एंड इफ यू आर रनिंग योर इंस्टीट्यूट्स एज अ सिंगल ट्यूटर, देयर इज अ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज। तो यू हैव अ लैक ऑफ फैकल्टीज। तो हमने सोचा कि अगर हम इन्हें फैकल्टीज को प्रोवाइड करें, इफ यू प्रोवाइड ए ह्यूमन रिसोर्स एज अ टीचर और एज अ फैकल्टी और एज अ डाउट क्लियरेंस टीचर्स, तो there is only a single work of institution that they have to come in their institutes and only simply deliver a lecture, and the rest of the work we will do from our side. I mean, I want to focus on the work actually we are currently doing in the markets and we are currently doing with our clients. They have only a single work. They have to come in their institutes. They have to deliver a lecture. Rest of the things, their doubts clearance. We have a huge team members around the different fields, from the states competitive exams, central government competitive exams, IIT, JEE, medicals, defense competitive exams, kids codings, and the many more fields. So we clear the doubt of their students from our side on behalf of that institutes. We Mm-hmm. give them a high quality study materials from our side on behalf of that institutes. We provide a white label study materials. I mean, white label study materials ये है कि materials हमारे द्वारा बनाई रहेंगी, ठीक है। We will prepare all the study steps and just insert the picture of that institute. I mean the logo and the brands and the author. तो उनकी भी उनके कंपटीटर्स या उनके मार्केट्स में उनकी एक ब्रांड इमेज बने कि दे आर वर्किंग एज अ फुल ऑर्गेनाइज सिस्टम, ठीक है। तो हमने व्हाइट लेबल्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वी वर्क ऑन द मार्केटिंग एंड एड्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप हमारे सबसे पीछे हो जाते हो मार्केटिंग एंड एड्स में। वी Mm-hmm. we insecure them that we will increase your revenue 3 to 5 times within a 2 year। हमने उन्हें पूरा भरोसा दिया कि हम आपके रेवेन्यू को 3 to 5 टाइम्स 2 साल के अंदर इंक्रीज करेंगे। और कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में हमारे ऊपर भरोसा नहीं जताया, बट
आफ्टर द पैंडेमिक जैसे खत्म हुई, लोकल मार्केट्स थोड़ी स्टेबल्स हुई, हमने ग्राउंड्स में वर्क किया और अब हमारे पास 17 क्लाइंट्स हैं. देयर आर 17 इंस्टीट्यूट्स एंड द all the institutes having at least students holdings of 500, 700, 1700 and 1500. So we work for them. We provide all these things from human resource to study materials. Actually, we have just given a name. We provide IT cum academic solution. तो आईटी कम एकेडमिक सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपकी ह्यूमन रिसोर्स सारे को हमने कैप्चर कर लिया. वी एक्वायर होल द एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट और अच्छा, काफी काफी कम कॉस्ट में. मतलब इंस्टीट्यूट के टीचिंग पार्ट को इंस्टीट्यूट के हाथ में छोड़ दिया और बाकी ऑनलाइन पार्ट है जो वो आप हैंडल कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का, लाइक एडवर्टाइजमेंट से लेके रिसोर्सेज देना और डाउट क्लियरेंस ऑनलाइन, ये सारी चीज़ आप हैंडल कर रहे हो. और उनका जो टीचिंग पार्ट है, मतलब उनको सिर्फ टीचिंग पार्ट का रोल करना है ना? ऑफलाइन भी हमारे काम है क्योंकि जो हमारे बुक्स हमारे मॉड्यूल्स हो, ठीक है, हम्म. हमारे टेस्ट सीरीज जो हमारे क्वेश्चंस बैंक जो प्रिंटेड फॉर्म में से आती हैं या हमारी जो मैगजीन्स आती हैं जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं या फिर उनके ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट या ऑफलाइन टेस्ट या मेगा टेस्ट जिसे बोलते हैं ओपन मेगा टेस्ट जो पूरी की पूरी पांच डिस्ट्रिक्ट या पूरी स्टेट्स के बारे में बात करें जहां किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूट ने वो टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया. तो ये सारी काम भी हम उनके लिए करते हैं और ये एक है ना कि सिंपल सी बात है, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स का एक और डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ. दुनिया में काफी चीजें पहले से हैं, मतलब पहले से पड़ी हुई है. सिंपल सी बात है, वो बिखरी हुई है. दे आर इन द डिस्क्रीट फॉर्मेट. हम्म. इफ वी अरेंज देम एंड गिव देम अ गुड एक्सपोजर, या सिंपल सी मैं बात करूं हिंदी भाषा में कि अगर हम उन्हें सजा के दुनिया के सामने प्रेजेंट करें तो दिस इज योर प्रोडक्ट, वो आपका प्रोडक्ट हो जाता है. तो पहले से काफी चीजें थी. मार्केट्स पहले से भी चल रही थी, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से भी चल रही थी. हमने सोचा इफ वी ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज कोचिंग सेक्टर्स एंड गिव देम अ सिंगल प्लेटफॉर्म so that their revenue, their rankings, their ratings will be equally judged on a single platform. You can just house the concept of OYO, what exactly they did, and we are doing the same. हम्म. This is our concept. ओके. तो अभी आपने बोला कि बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो धीरे धीरे जो छोटी कंपनीज हैं उनको एक्वायर कर रहे हैं. और जैसे बायजूस का आपने अभी सुना होगा कि वो छोटी जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज हैं वो एक्वायर कर रही है. तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? और एक ये है कि यूएस मार्केट में वो बायजूस अब बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है. तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या व्यूज़ है और मतलब क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पे, एक्वायरिंग पे और पहले यूके के पहले से भी यूएस बात है, के? एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. हम्म. ठीक है, बायजूस की मैं बात करूं, अनअकैडमी के बाद बायजूस का फाउंडेशन हुआ, रविंद्रम बायजूस. और सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, बायजूस का जो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट है, ठीक है, ये इनके इन्वेस्टर्स पे है. और इनके जो सबसे बड़ा थे वो फेसबुक, ठीक है. बायजूस की के चेयर आई थॉट, मुझे जहां तक याद है प्रिंसलिया चेन है को चेयर बायजूस की. हम्म. यूएस मार्केट का छोड़िए, आपको मैं पहले इंडियन मार्केट के बारे में कंडीशंस बताता हूँ. Byju's acquires most of the startups, including Whitehead Junior, having a they acquire Whitehead Junior in $700 million in rupee 2100 CR, 2100 crores. काफी ज्यादा मतलब ओवर रेटेड वैल्यूएशन थी व्हाइटहेड जूनियर की. बट इवन दो दे एक्वायर व्हाइटहेड जूनियर, क्योंकि अभी किड्स कोडिंग्स की ट्रेंड चली हुई इंडियन मार्केट्स में. एंड एज द आवर इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एनईपी 2.0, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2.0, देयर आर they focus the kids coding and the programming coding sections, and they wanna encourage these sectors to our schools, our college, and in our industry.
बायजूस की सबसे बड़ी बात है कि बायजूस ने उन स्टार्टअप्स को कैप्चर किया जो ग्रोइंग फेज में थे, जो डेवलपिंग फेज में थे। किसी सैचुरेटेड स्टार्टअप्स को बायजूस ने अभी तक कैप्चर नहीं किया। व्हाइट हैट जूनियर डेवलपिंग फेज में थी, वो सैचुरेट नहीं थी, वो डेवलप नहीं आ चुकी थी। दे एक्वायर्ड अपग्रेड ग्रेड अप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एप्स, उनका भी वही फंडा था। मतलब इनका सिंपल सा फॉर्मेट है कि जो मार्केट्स में अच्छा कर रहे हैं, जो मार्केट में एक्सपोज हो चुके हैं और जिनका कॉन्सेप्ट उनके तरह है या उनसे थोड़ा सा डिफरेंट या उनसे थोड़ा अच्छा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें, अगर सिंपल सी बात है कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करो, अगर आप इन सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर करते हो तो आप क्या बन जाते हो, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के हेड बन जाते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, यू विल ऑपरेट होल दिस स्टार्टअप, जितने भी ये स्टार्टअप्स इनके अंडर कर रहे हैं। और सिंपल से मैं ये सारे स्टार्टअप प्रिंसली चेन की तरह एक्वायर नहीं हुए हैं। आपको मैं बात बता दूं, तो प्रिंसली चेन होता क्या है कि आपके स्टार्टअप्स है, आपने एक्वायर कर लिया, बट आपका पूरा का पूरा मनमानी नहीं चलेगा वहां पे। जैसे बायजूस एक्वायर आकाश, ठीक है, आकाश तो इंस्टीट्यूट। आका, आकाश जैसे काम कर रही है वो वैसे काम करेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से बायजूस को एक्वायर नहीं किया। दे डोंट हैव ए पेरेंटल कंट्रोल, एक्चुअली उन्होंने प्रिंसली चेन उसका एक्वायर किया। जितने भी आकाश के फ्रेंचाइजी और इंस्टीट्यूशन है, सारे जगह बायजूस काम कर रही है, बट अपना मनमानी वो वहां पे नहीं चला सकती, ठीक है। दे विल डिस्कस ऑल द डिसीजंस, और मतलब सुन के टीम मेंबर जो करेंगे, बट वो होता है ना एक पेरेंटल कंट्रोल, दिस इज आवर ऑर्डर्स और दिस इज आवर डिसीजंस, यू हैव टू फॉलो इट एनी कॉस्ट, वेदर यू वांट एग्री विद दिस डिसीजंस और नॉट, इट डजंट मैटर। तो ये कंडीशन थोड़ी और है। अभी आप यूएस मार्केट में बताओ, करेंटली बायजूस आई थॉट से मतलब ग्लोब्स में 4 से 5 कंट्री में बायजूस ऑलरेडी अपनी एक्सपेंशन कर चुकी है, अपनी वो पैर जमा चुकी है। यूएस में भी करेंटली दे आर गोइंग क्वायर टिंकर द किड्स कोडिंग प्लेटफॉर्म, ये जल्द की न्यूज है। और आपने एक रिमर्स भी सुना होगा, और मे बी देर विल बी अ लिटिल देर विल लिटिल राइट, मतलब वेदांतु के बारे में आपको पता होगा, द स्टार्टअप फॉर्म बाय द 3 IITians। वेदांतु ऐप। यस सर। करेंटली बायजूस बायजूस उन्हें एक्वायर करना चाह रही थी, बट उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज ही आया कि स्टार्टअप्स अगर मार्केट्स में आते हैं, अगर स्टार्टअप बनते हैं तो बेचने के लिए नहीं बनते, ठीक है। तो क्योंकि उनका फर्स्ट टारगेट वेदांतु ही था, वेदांतु के बाद उन्होंने ग्रेडअप्स को एक्वायर किया जैसा लग रहा है, क्योंकि ग्रेडअप्स के पास वैसा कुछ खास था नहीं, मार्केट ऑडियंस या फिर कुछ वैसा यूजर्स कनेक्शन उनके पास उतना तगड़ा नहीं था। दे आर स्टिल इन द डेवलपिंग फेज और इन इट्स इनिशियल फेज, दे जस्ट ग्रो फ्रॉम देयर नेसेंट एज। अच्छा, ठीक है। तो मतलब एक्वायरिंग का जो गेम है वो लगभग सारी कंपनीज करती हैं, जैसे गूगल से लेके और ये बायजूस। अभी तो बायजूस तो ऐसे इस सेक्टर में बायजूस ही है जो सबसे आगे चल रहा है। और मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा आपका, आपका जो ये प्रेपलर्न है वो बिहार में 4th रैंक आया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी हार्ड होती है, और मतलब कितना टाइम लगेगा चीज़ों को, अगर कोई स्टार्ट करता है अभी से तो कितना टाइम लगेगा उस चीज़ों को समझने में, और मतलब अप्रोच, किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच समझने में और उसको अप्लाई करने में। और सबसे आई थिंक 3 या 4 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, जो मेरे लाइफ के साथ हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स होना और खुद को समझना, ठीक है, और उसके लिए काम करना, ये 2 बातों में अलग है। जैसे आजकल के अगर स्टूडेंट्स या फिर आजकल के बच्चों को देखोगे, उनके प्रोफाइल्स आप सोशल हैंडल्स पे देखोगे, तो उनके बायो में एंटरप्रेन्योर्स लिखा रहेगा। यस सर, मैं देखा जनरल हूँ टाइम काफी मिल गया। जनरल टाइम, and the most of the students are from the engineering college backgrounds or they are from the BTech background, ठीक है, क्योंकि उनके जो CSIT वाले रहते हैं या फिर इसी वाले रहते हैं, उनका प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग से वो एक प्लेटफॉर्म है। तो
एक चीजों को थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा सा मतलब एक गलत सा एक मतलब स्टूडेंट्स या फिर लोगों के बीच में कंफ्यूजन सा आ गया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक रिलेटेड वर्क, इफ यू आर अ डेवलपर, यू आर एंटरप्रेन्योर। तो मैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स और मैं अपने कॉलेज मेट्स के साथ देखता हूँ कि इफ दे डेवलप समथिंग्स एक्चुअली द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और कुछ कॉपी आपने किया बट आपने कुछ उसमें कुछ नया किया, तो आपने एंटरप्रेन्योर खुद को बोलने लगते हो या फिर समझने लगते हो। इसमें थोड़ा सा चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप अगर सिंपल सी बात है, आप जितनी भी अभी तक आपकी जिंदगी की जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आइडिया हमेशा आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ ही आते हैं। या तो आपके गुडविल से आए या फिर आपके बैडविल से आए, आपके गुड एक्सपीरियंस से आए या फिर आपके बैड एक्सपीरियंस से आए। अगर आपने कहीं डिफिकल्टीज फेस की है, तो आप चाहते हो कि ये डिफिकल्टीज दुनिया और लोगों को और फेस न करनी पड़े। फिर आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो और उसके लिए एक थीम तैयार करते हो, एक आइडिया तैयार करते हो कि इसको टैकल करने के लिए, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, कि अच्छा। आपने सोसाइटी के नीड्स को समझा, जो करंट सिचुएशन से उसे समझा, या फिर लूपहोल्स को समझा, ये प्रॉब्लम्स को आपने समझा, इस पे आपने काम किया, और इसे कैसे टैकल किया जाता है, कैसे हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज, आप इस पे वर्क करो। ठीक है, कि अगर आपने पूरा फुल डिसाइड कर लिया है कि ये प्रॉब्लम्स है और ये सही तरीका है इसे सॉर्ट आउट करने का, तो आप जैसा सोचा है आपको उसी अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। आपने अगर उस अकॉर्डिंग वर्क किया, जो सबसे थर्ड स्टेज है उसे इम्प्लीमेंट करना। लोग यहीं पे फैल जाते हैं, आई मीन वो गिव अप कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज उनके हाथ में होती है, थर्ड स्टेज उनके हाथ में नहीं होती। क्योंकि मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, लोग कैसा रिएक्ट करने वाला है, पीपल्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल्स और नॉट, ये उनके ऊपर रहता है। हो सकता है आप काफी चीजें बहुत अच्छा कर रहे हो, बट लोग को अच्छा नहीं लग रहा हो, मार्केट्स और सोसाइटी की उस समय वो नीड्स नहीं हो, नीड्स भी हो बट उनके दिमाग में वो नहीं है। तो पहले हो सकता है आपको उनके लिए कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा, उनको उनके दिमाग में डालना पड़ेगा, ये चीज है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, इससे बेहतर ये है। तो थोड़ी टाइम लगती है। जो मेन मतलब मैं जो सबसे बड़ी जो टाइम ड्यूरेशन या इंटरवल लगती है, वो इम्प्लीमेंटेशन में लगती है। जब आप अपने लैपटॉप और अपने ऑफिस से जब आप ग्राउंड पे वर्क करते हो, आप मार्केट्स में जब आना वर्क करते हो, तब आपकी असली होते ना, आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आप वहां पे सक्सीड कर गए, तो आप एक यूथ आइकन बन गए, आप एक आइकन बन गए, पर्सनालिटी बन गए, और आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। और अगर आप फेल कर गए, तो फिर हो सकता है कुछ चुनिंदे लोग आपको याद रखे, कुछ नहीं याद रखे। काफी के साथ हो चुका है जो अभी करंट्स में है। यस सर। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम सीईओ, उनकी पेटीएम पहली फर्स्ट स्टार्टअप नहीं रही, और भी काफी लोग जो हैं। और एक चीज ये है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप दो अलग चीज है। और स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा बात जो है ना, आप अशोक सुत्ता के बारे में जानते हो, ठीक है, अशोक सुत्ता हैप्पीएस्ट माइंड्स के को फाउंडर थे। उनकी एक कोट है, फंडिंग इज द फ्यूल ऑफ अ स्टार्टअप। आप काफी अच्छे, आपकी आइडियाज है, आपने काफी अच्छा वर्क किया है, सारी चीज आपकी सही है, बट आपके पास फंडिंग नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। क्राउड फंडिंग से ज्यादा कुछ होने होने वाले हो। तो ये एक सबसे बड़ा सिचुएशन आता है हमारे बीच में, और करंट में हमारे साथ भी चल रहा है, लोगों के साथ भी चल रहा है, कि अगर आप खुद को ग्रो कर चुके हो, आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस हो मार्केट में आने के लिए, और अब आपको चाहिए कि हमें एक अच्छी फंड चाहिए, एक अच्छी कैश फ्लो चाहिए पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और उस टाइम पे अगर आपको वो कैश फ्लो मिल जाती है, तो आप यूनिकॉर्न बनते हो। और वो नहीं मिलती है, तो आप फिर उसी फॉर्म में चलते रहते हो सकता है फिर आपका वो ना एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आपके टीम मेंबर्स और आप में भी गिर जाता है कि क्या होगा आने वाला। गाड़ी तो आपकी कोई भी हो, मर्सिडीज हो या ऑल्टो हो, जब तक सेल नहीं रहेगी तब तक नहीं चलेगी।
यस सर, तो इसी से रिलेटेड एक डाउट था कि बूटस्ट्रैपिंग क्या अप्लाई हो सकता है इस इंडस्ट्री में? एडटेक से रिलेटेड बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं या फिर क्राउड फंडिंग, मतलब क्या प्रॉपर इसका वो रहेगा, फंडिंग का जो मेथड है इसका? टिल नाउ अभी तक हमने कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इनक्यूबेटर्स देती हैं, जैसे स्टार्ट इंडिया, स्टार्टअप्स बिहार। हमारे टीम मेंबर्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस से हैं। हमारे एक टीम मेंबर है शुभम सिन्हा, ही इज करंटली परसिंग हिज बीटेक इन ईसी फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो हम्म। वहाँ के इनक्यूबेटर सेल्स है, वहाँ हमने पेपर को प्रेजेंट किया है। हमारे एक और टीम मेंबर्स हैं, वो भी एनआईटीज में। कुछ हमने ओपन सोर्स के साथ अपने कनेक्शंस के साथ, कुछ रेफरेंसेस के साथ हमने कुछ को कांटेक्ट किया है। बाकी क्राउड फंडिंग अभी तक प्रेपेलेंस को चला रही है। अब हमारे पास कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है हमारी क्लाइंट से। तो प्रेपेलेंस रनिंग मोड्स में है, बट एक धमाका करने के लिए हमें फंडिंग्स की जरूरत है और हम इसकी खोज में हैं। और मेरे हिसाब से जैसा मतलब सिचुएशन है, हमें जल्द मिल जाएगा। और आने वाले 1-2 साल में प्रेपेलेंस शायद कहीं और रहेगा। ओके सर, तो एक और चीज़ है कि मतलब स्टूडेंट्स मेनली इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, और बहुत रेयरली केस होता है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करता है एज अ करियर या फुल टाइम, मतलब फ्यूचर के लिए। तो आपको क्या लगता है, कोई रीज़न होगा इसका या फिर ऐसे ही, मतलब आपके हिसाब से इसमें क्या रीज़न्स हैं? एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मतलब इसे पूरी तरीके से अपना कैरियर बना लेना या फिर वर्किंग प्रोफेशनल बनना, ये दो चॉइसेस होती है मेनली। जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएट, जैसे ही अपना उनका ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास होती है, ठीक है, तो हुँ, उनके पास चॉइसेस होती हैं। अगर ये तो मैं किसी अच्छे टेक कंपनीज या एमएनसीज या किसी अच्छे फर्म में काम करूं, वही वर्किंग प्रोफेशनल हमारे 9 से 5 वाली जो जॉब्स है, उसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूं और अपनी जिंदगी उसी के साथ जियो। हुँ, हुँ, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो सोचते हैं कि मैं दुनिया के लिए फिर अपने सोसाइटीज के लिए कुछ अलग करूं। कंफ्यूजन काफी रहता है। सबसे बड़ी चीज है कि स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता। वो उन्हें ऐसा लगता है जब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर्स में हो गए अपने ग्रेजुएशन की, हुँ, हुँ, फर्स्ट ईयर्स में हो गए, तो उस समय आपको ये लगता है कि हमने जो सोचा है हम इस पे फतह पा लेंगे। ठीक है, हमारी आइडियाज काफी इंटरेस्टिंग हैं, हम काफी अच्छा करने वाले हैं मार्केट में। जैसे जैसे वो काम खत्म करते हैं, मार्केट तक आते हैं, और उन्हें जैसे लगता है कि उनके जैसे होता है ना, लगातार मतलब 6-7 अटेम्प्ट, 6-7 क्लाइंट के साथ उनका सीधा बैड रिस्पॉन्स आए, मतलब सीधा नो, बिना कुछ बात सुने, तो वो होता है ना कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अगर यहाँ पे अगर आपके कॉलेज मेट्स होंगे, 10 लोग होंगे, उसमें से 10 में से 7 बंदे ऐसे होंगे जो ये चूज करेंगे, नहीं भाई मुझे वर्किंग प्रोफेशनल नहीं बनना है, मुझे 9 से 5 वाली नौकरी नहीं करनी है, मैं खुद का धंधा चलाना चाहता हूँ। हुँ, ठीक है हुँ, ना, इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं। लेकिन वो 7 लोग जब 2 साल क्रॉस कर जाएंगे ना, तो उस 7 लोग में हो सकता है एक भी ना बचे। और उस टाइम पे वो रिग्रेट आएगा ना कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है। क्योंकि मार्केट के नीड्स को आप एक्वायर नहीं कर पाते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास प्रेशर्स होती है कि मैं जैसे ही कॉलेज से निकलूं, जैसे ही मेरी बीटेक खत्म हो, ग्रेजुएशन खत्म हुई, तो आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स जो है वो चाहते हैं कि भाई हमारा बंदा जो है वो कहीं प्लेस्ड हो जाए, कहीं सेटल हो जाए, है ना। तो ये सबसे बड़ी टेंशन जो होती है, सबके साथ होती है। वो कोई कोई तो डिप्रेस भी हो जाते हैं कि हमने क्या डिसीजन तो नहीं दिया, अब हमारे पास 1 साल बची हुई है, अब मुझे पढ़ना चाहिए या इसी को मैं आगे लेके बढ़ूं। बहुतों को लगता है कि यार नहीं, अभी इसमें और काफी टाइम लगने वाला है, ये हो सकता है ये सक्सेस भी नहीं ले। ठीक है, तो ये ऐसा एक कंफ्यूजन है ना जो बहुत स्ट्रेस में डाल देता है।
सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ भी हुआ, हमने भी सोचा कि एक टाइम पे जब पेंडेमिक स्टार्ट हुई हमारे साथ भी प्रिपेयर एंड मार्केट्स में अच्छा वर्क नहीं कर रही थी, हमारे बैक टू बैक हमारे रिजल्ट्स, हमारे रिस्पॉन्स नो में आ रहे थे। बट हमारे साथ ये था कि अपन पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि हमारी टीम्स काफी बड़ी थी। क्योंकि हम्म आपका डिसीजन, प्रिपेलन का डिसीजन सिर्फ एक या दो बंदे पे नहीं है, प्रिपेलन का डिसीजन 27-28 बंदे पे है। और आप लीडरशिप की क्वालिटी होती है, आप जंग हार रहे हैं तो हारिए, बट अपना आप वहां से मैदान छोड़ के आप भाग नहीं सकते। हम्म तो ये कंडीशंस हुई, ये होप हुई जो प्रिपेलेंस को अभी तक सरवाइव कर रही है। और अब तो प्रिपेलेंस कंडीशंस काफी अच्छी हो चुकी है। मतलब वी आर गोइंग टू हिट दिस मार्केट्स विद इन 2 years, मे बी वी विल बी यूनिकॉर्न। हमारे पास फंडिंग्स भी अच्छी आ रही हैं और जल्दी आपको हो सकता है हमारे कुछ पीआरस में आपको पता चल जाए। अभी क्योंकि अभी हमें एक्सपोजर उतना मिला नहीं और हम चाहते में आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिलेंगे। तो रियलिटीज ये आ जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है ना भाई, मतलब काफी 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 मतलब स्ट्रेस बता रहा हूँ, हार्ड और इजी या फिर कठिन या ये सब के बारे में। स्ट्रेसफुल, आपके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहेगा, आपके दिमाग में 10 बातें चलती रहेंगी, हाँ ये ना, ये काम होगा, हाँ ये ना, हाँ ये ना, हाँ ये ना। एक लाइफ का एक मोमेंट आता है कि आप न चाहते हुए भी आप गिव अप करना चाहोगे, मुझे हम्म अब गिव अप कर देना चाहिए और अब मुझे अपने पुराने रास्ते लौटना चाहिए। हाँ बट अगर आप मार्केट्स में कुछ नया ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो अभी तक हुआ ही नहीं, जैसा प्रेपल not providing the LMS, we are not providing the learning management system, we are providing HLMS, hybrid learning management system. We have we have cancelled out the disadvantages of both the online and the offline learning. तो हमने हम्म दोनों तरीके से हाथ मिलाया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये आइडिया यूनिक है और करंटली जितने भी अभी टेक कंपनी है या ई लर्निंग कंपनी है वो इस आइडिया से भी आई नहीं है। तो हो सकता है हमारे पास टाइम है और वी आर वर्किंग नेट बेस्ड इंस्टीट्यूट, आई मीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चेन लाइक अ स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, आप अपने स्टेट्स में जाओ, आपके 10 डिस्ट्रिक्ट हो तो हो सकता है 10 डिस्ट्रिक्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट में प्रिपेलन की फ्रेंचाइजी वाले इंस्टीट्यूट रहे। तो ये है, अगर अपन 50 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं तो अपन एक रिकॉर्ड सेट करेंगे। प्रिपेलन विल बी द सिंगल इंस्टीट्यूट हैविंग मोर देन 15 प्लस ऑफलाइन ब्रांचेस इन इंडिया। ओके सर, तो एट द एंड आपको मतलब एंटरप्रेन्योर्स, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई लास्ट टिप होगा जो आप शेयर करना चाहेंगे अपनी साइड से? मार्केट के नीड्स को समझो, कुछ लोग जो आपके आइकन्स हैं, आप जिसे फॉलो करते हो, उनकी जर्नी के बारे में पढ़ो, उनके एक्सपीरियंस गेन करो और डिसीजन हमेशा एक्यूरेट लो। इट डजेंट मैटर वेदर इट गोज रॉन्ग और राइट, ठीक है, क्योंकि अगर सही हो या गलत, दोनों में एक चीज आपको फायदा होने वाला है, वो एक्सपीरियंस का। और आपको अगर एक चीज आप देखो कि अगर आप कुछ चीज लेके चल रहे हो, आपने स्टार्टिंग अकेले किया है या 2-3 टीम मेंबर्स के साथ हो, एज द टाइम पासेस आपको अपने साथ लोगों को लेके साथ में आना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन, ये पहला आपके पास जो एक होता है ना, मतलब ये टैकल्स करना होगा आपको, इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो पहले हम पे विश्वास करें। आप स्टार्ट 2 के साथ करो बट 25 होने वाले 6 महीने साल भर में अपने साथ ले आओ। अगर वो 25 आपके साथ ले आए, समझो कि आप सही रास्ते पे हो। वो अगर आपसे ऑब्लाइज हो गए, वो आपके आइडिया को समझ गए और आपके साथ काम करने के लिए अपनी कैरियर और अपनी जिंदगी लगा चुके हैं, तो आप समझो कि आप मार्केट में जरूर से जरूर सक्सेस करोगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे और फिर उसी में लग जाओ। और स्टार्टिंग के 6 महीने या साल भर या 1.5 साल तक आपको लगा आप खुद में अकेले वर्क कर सकते हो, तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हमारे यहाँ एक कहावत है, एक कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, मतलब वो जो घड़ा होता है ना, ठीक है, तो हम्म आप अकेला चना मारोगे उस पर तो वो फूटने वाला है नहीं। हो सकता है चने की
मतलब आप 250 ग्राम चना का एक बॉल टाइप का बना, आप उसे मारोगे तो वो हो सकता है फूट जाए। तो हो सकता है आपको अपने टीम मेंबर्स को लाना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में ग्रीड फैक्टर्स देना पड़ेगा, मनचाहे डेजिग्नेशन देने पड़ेंगे उन्हें, को फाउंडर्स, सीएमओ, सीएफ, सीटीओ, जो चलन है आप दे दो। अगर वो एक बार आपके साथ आ गए तो आप जो काम कर रहे हो उस पर रुकना मत, क्योंकि वो फिर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका आइडिया यूनिक है, आपने कुछ चीज सही करा, आपने मार्केट के लूपहोल्स को ढूंढा है, और बढ़ते रहो। क्राउड फंडिंग्स लाओ, अपने सोर्सेस बढ़ाओ, अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, किसी से रेफरेंस लो और मार्केट में वर्क करो। हाँ, कॉपी कॉपी करना सही नहीं होगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हो और अगर आप उसे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन बताते हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टाटा, बिरला, अंबानी बने। यस सर। ऐसे कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, आपका आइडिया काफी अलग होना चाहिए। ओके, तो इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन एंड होपफुली सबको मतलब बहुत इससे सीखने को मिला होगा इस सेशन से। तो आखिरी में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मतलब बेफिक्रा कम्युनिटी से आप जुड़े रहना, फ्यूचर में क्या पता हम भी किसी काम आ जाए आपसे, आपके, या फिर आप अरे हमारे जी, काम आ जाओ। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इतने अच्छे सेशन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। thank you, thank you so much, you all of guys. Actually, uh, I'm so pleased that I'm being here and discussing the edtech industry and the propellants. You all guys are awesome, and in future and some current till dates, uh, my eye on बेफिक्रे कम्युनिटी करती क्या है, और मैं आशा करता हूँ कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हो और काफी ऊंचे तक जाओगे। और अब हमारी कनेक्शंस हो चुकी है बेफिक्र कम्युनिटी के साथ, तो जाहिर सी बात है काफी दूर तक जाएगी। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू, कंक्लूड करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो नाउ मे आई लीव और नॉट? एक मिनट सर, आदि कुछ कहना चाहता हो? Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for coming in this session. थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। और एनीवन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। ठीक है सर। ठीक है, बाय फिर। थैंक थैंक यू सर। बाय।